Hi guys, welcome back to Journey Teachers. So today we have Janvi with us, who is going to introduce yourself. Okay, so hi guys, I'm Janvi Jain, and I'm currently pursuing masters in clinical psychology from Christ University main campus, Central Campus, and I did my bachelor's in psychology honors from Punjab University, basically. Yeah. Okay, so that's really great and it's wonderful to have you here, Janvi. And Janvi is going to share about her experience as pursuing psychology in Christ University. So let's hear from you. So let's begin with the very first question. What's your experience about the student life and university life at Christ? So basically, I come from Punjab, and the college that I basically studied in, वहाँ पर infrastructure was not like as good as it is here in Bangalore in Central Campus, basically. So infrastructure wise, it's really nice. The libraries, the parks, the canteens, it's like much better than what I had in Punjab. And coming to the student life, well, disclaimer, it is rigorous, it gets exhausting, semester by semester it does get exhausting, but the thing is that one thing that I've like majorly felt is that great amount of personality development actually happens here in Christ. So I'm not the person what I was back in Punjab, जो मैं अब हूँ, and Christ has played a major role. It teaches you resilience because the deadlines that you're supposed to meet and all of that. So yeah, so personality development does like happen majorly in Christ. So yeah. Right, not just theory in psychology, but it teaches you a lot of practical knowledge, on-field exposure you get, which eventually enhances your personality as well. So that's really wonderful. So do you have some advice for the aspiring students in terms of application and selection process, majorly in the psychology department? Yeah, so basically the applications roll out in the month of December, I guess the second week of December it usually rolls out, and post that the main exam, the online test that happens, it happens for me, it happened in the first week of March. I don't know if this year presently, I don't know, but I'm pretty sure it's happened already, and yeah, the interviews have also happened. So the first round is obviously in my particular course in clinical psych, MSc clinical psych. So first of all, there's this the online test, and the syllabus for it is already been given on the site, so you guys can go through that. Then post that, there's they'll schedule an interview round for you, and you will have to give the interview, plus towards the end of the interview they'll take your micro presentation round. So they'll just basically give a topic on the spot, and you're supposed to speak on it ekdam se. So yeah, that is and my advice to everybody would be to be thorough with your concepts of undergrad. It is very important. And apart from that, for the interview, like my major advice would definitely be just be yourself, one, and secondly, whatever you've studied, just be true to it. Just don't try to pretend that you know everything. If you do not know anything, just say like अच्छे से कि मुझे नहीं आता है, and just don't try, because the interviewers are very experienced. They'll completely understand पहली बार में कि जब भी तुम कुछ गलत बोलोगे तो वो पकड़ लेंगे एकदम से, and they'll counter question you, so that will be a trouble for you. So it is important that you just know what you speak. Yeah, that's it. Yeah, because they can ask you counter questions based on what you are saying, and it will be heavy on your part only if you lie to them or something like that. Yeah. So what were some of the common concepts or maybe questions that were asked particularly for your course? So it covered a lot of biopsych, and social psych is like what I can recollect as of now. So I remember जो basics कराते हैं UG में, I think majority universities में कराते हैं the basics. It is important कि वो basics तुम्हारे tips पर हैं. So yeah, social psych and biopsych मेजरली मुझे याद है, एंड ऑल्सो रिसर्च कई जैसे पंजाब में बैक इन पंजाब हमारे लिए रिसर्च का वर्ड नहीं था. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट
दैट यू डू कि रिसर्च वाला पार्ट अच्छे से करो. सो या रिसर्च ऑब्वियसली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है रिसर्च के ऊपर. सो अगर यू आर प्लानिंग टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, है नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा रिसर्च में. या Yeah, research is something, and particularly in the psychology department, research is a very essential Yeah. part. So, what about the entrance exam or kind of micro presentation? What suggestions or topics you have for them? सो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई करा था, बट द थिंग इज़ दैट नॉट ऑल ऑफ देम हैड टू गो थ्रू द माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड, which was surprising for me because for me it happened. My topic was community service and I wasn't given time to think, क्योंकि यूजुअली मैंने पहले सुना था कि ऐसे 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है एंड देन यू सपोज टू स्पीक. मुझे एकदम से बोल दिया गया था कि दिस इज़ योर टॉपिक एंड स्टार्ट. तो तो आई स्पोक फॉर आई थिंक 1 minute एंड उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू बंद कर दिया था. उन्होंने कहा था थैंक यू. बट यूजुअली बहुत जनरल टॉपिक्स आते हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस. एक फ्रेंड का मुझे याद है वॉज वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया. तो जनरल टॉपिक्स होते हैं, दे जस्ट वांट टू नो कि जो मुझे समझ में आता है कि आपका ओपिनियन कितना स्ट्रॉन्ग है और आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कितना स्टिक कर पा रहे हो आप अपने ओपिनियन के साथ. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोर. Right. What do you have to suggest about that particular topic, और आप उसको कैसे in front of them present कर पा रहे हो अच्छे से in that particular time frame? That is what actually check in micro presentation. Okay, so one of the most common factors students actually consider is the faculty also. So what do you have to say about that? So faculty is very experienced, मतलब दे नो एवरीथिंग. मतलब और यहाँ पे आके मुझे इतना प्रिविलेज्ड फील हुआ था क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के फ्लोर पे एक बोर्ड है बड़ा सा जिस पे सबके रिसर्च पेपर्स डिस्प्लेड हैं. एंड व्हेन यू गो, मतलब हमारे देखने के लिए हैं, एंड व्हेन यू गो थ्रू दोज यू अंडरस्टैंड कितना इंटेलेक्ट है इन लोगों के अंदर. एंड और जिस तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं समझ में आता है कि इन्होंने कुछ किया है लाइफ में. सब बहुत क्वालिफाइड हैं फैकल्टी जो है, एंड टीचिंग मेथड सबके अलग अलग रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं. सो या फैकल्टी के लिए तो कोई डाउट है ही नहीं. रियली नाइस फैकल्टी. That's really great, and when you look at their professional lives और उनका experience क्या है, उनकी scholars, PhD, all of that, so you amazing, you get surprised कि इतना खुद से they have experience and they teach so well as well. Yeah. So what does the course curriculum actually looks like, and what all extra activities are covered? ओके, सो कोर्स करिकुलम मास्टर्स के लिए जो फर्स्ट सेम रहता है इज़ यूजुअली एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ व्हाट यू डिड इन यूजी. तो कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिलेबस रहता है. तो अगर आपने कुछ नहीं भी किया, जैसे जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हमें यहाँ पे यूजी अपना फर्स्ट ईयर में करवाई, दे वरंट कवर्ड. सो टेंशन की बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम स्क्रैच, मतलब प्रोवाइडेड यू हैव द बेसिक नॉलेज यूजी की. सो फर्स्ट सेमेस्टर इज़ यूजुअली एन एक्सटेंशन ऑफ इट, एंड प्लस देर इज़ कम्युनिटी सर्विस फॉर द इंटायर सेमेस्टर, जिसके भी देर इज़ अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, CIs, तो वो रहते हैं साथ में फॉर ईच सब्जेक्ट प्लस कम्युनिटी सर्विस. सो आई थिंक आई हैड अ टोटल ऑफ, आई थिंक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स मिलाकर आई हैड अ टोटल ऑफ 9 सब्जेक्ट्स. 6 कोर पेपर्स थे और बाकी 3 अलग सब्जेक्ट्स थे. देन सेकेंड सेमेस्टर में आता है 4 मेन कोर पेपर्स रहते हैं. इसमें हम प्रॉपर क्लिनिकल साइक पढ़ना शुरू करते हैं. साइकोपैथोलॉजी आ गया, बायोसाइक, देन द डिसऑर्डर्स वी स्टार्ट स्टडिंग इन द सेकेंड सेमेस्टर, and cog psych and all of that, but the number of subjects keep reducing each semester. And from what I've heard, अभी मैं presently second semester में हूँ, from what I've heard fourth semester तक एक core paper रहता है and rest is practical. तो अभी we have practical also, मतलब जैसे psychodiagnostic lab का रहता है हमारा, and multicultural skills in counseling we are learning. So these are the extra subjects. Extra माने these are not the core papers, they are just practical papers which will have viva also and internal assessments. Then third semester also I think number of subjects remains same in the third semester, plus we are supposed to do begin with a pro bono. So pro bono is one thing about our course which is very unique. All universities mein you
won't get it. So pro bono is basically your taking clients, you're dealing with them, and you are not charging for it. And I think from what I've heard 4 to 5 clients हमें करने रहेंगे in the third semester along plus research. I forgot research second semester से third semester तक हमें complete करनी होती है. So it begins in second semester and you're supposed to complete it I think by the mid of third semester. So that is the research thing. Pro bono I've covered, and in the last semester in second semester के summer break में you're supposed to do your internship also for 1 month. And towards the last semester जो fourth semester रहेगा उसके अंदर एक सब्जेक्ट रहता है द कोर पेपर एंड रेस्ट इज इंटर्नशिप मेजरली. सो या दैट इज प्रीटी मच द करिकुलम. That was a complete detailed explanation semester by semester, and I'm really sure that it must be very helpful for our viewers. So what are some of the extracurricular activities or maybe programs going on along with your course? So मतलब ऐसे कुछ खास रहता नहीं है. इट्स मेजरली व्हाट यू आर स्टडिंग, एंड काम काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड इट गेट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एट वन पॉइंट. बी प्रिपेयर्ड. ब्रेकडाउन्स होते हैं लोगों के इनिशियली, इट गेट्स वेरी टफ, बट धीरे धीरे यू लर्न. इट्स ओके. एंड चीज़ें टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ज़्यादा इवेंट्स नहीं रहते हैं हमारे लिए, पोस्ट ग्रेड पर्टिकुलरली साइक डिपार्टमेंट के रहते नहीं हैं. सो एक्स्ट्रा करिकुलर इज़ ओनली जो हमारे प्रोफेसर्स रहते हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर साइमल्टेनियसली डूइंग सम रिसर्च वर्क और द अदर. तो उसमें या फिर टूल कंस्ट्रक्शन रहता है, साइकोलॉजी में जो टूल कंस्ट्रक्शन होता है. सो द प्रोफेसर्स में थोड़ा एक्सपीरियंस हमें दे सकते हैं उस चीज़ के अंदर. सो दैट्स प्रीटी मच द एक्स्ट्रा करिकुलर वी हैव. एंड प्लस देर इज़ दिस रियली नाइस कॉन्सेप्ट ऑफ केस कॉन्फ्रेंसेस. सो जो हमारे सीनियर्स रहते हैं who are currently taking pro bono, तो जो उनके केसेस रहते हैं ऑब्वियसली आइडेंटिफायर्स हटाकर वो हमारा लेते हैं. मतलब हमें केस कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब दे प्रेजेंट देयर एंटायर केस कि क्या केस आया था हमारे पास, क्या प्री डिस्पोजिंग थे फैक्टर्स, क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे, क्या उन्होंने फॉर्मुलेशन करा है, क्या थेरेपी वो देने का सोच रहे हैं, उनका डायग्नोसिस क्या है. दे डिस्कस इट विद अस. ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, चाहे वो साइको ऑन्कोलॉजी है, काउंसलिंग है, या फिर हेल्थ साइक है, या हमारा क्लिनिकल साइक का है, सब करते हैं ये. मतलब सबको टर्न्स दिए होते हैं एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल दी जूनियर्स, मतलब जो फर्स्ट ईयर के हैं मास्टर्स के, एंड ऑब्वियसली द सीनियर्स ऑल्सो. सो या केस कॉन्फ्रेंसेस एक बहुत बढ़िया एलिमेंट लगता है मुझे. Yeah, I think that's pretty much it. Yeah, and all of this adds so much to your skills and True. theoretical knowledge कि आपको on hands मतलब on hands experience होता है करने का. Right. So what does the routine of students actually look like? Psychology students की routine. So usually जो हमारे classes रहते हैं they are from 9 to 4. एंड क्या कहते हैं, पहले 50 आवर्स का जो एक लेक्चर होता है, देन अ 10 मिनट ब्रेक, देन 50 मिनट्स का लेक्चर होता है, एंड 4 आवर्स, देन 1 घंटे का ब्रेक, एंड देन 2 और लेक्चर. सो या तो पहला सेमेस्टर तो वॉज कम्प्लीटली बुकड एक्सेप्ट कि जो सैटरडेज होते थे दे वर मेंट फॉर कम्युनिटी सर्विस. तो उसका अटेंडेंस इज मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो आप कम्युनिटी सर्विस जहाँ से कर रहे हो, एंड फॉर द कम्युनिटी सर्विस यू सपोज टू लुक फॉर एन NGO यहाँ पर. सो कम्युनिटी सर्विस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में. तो सैटरडे यू आर सपोज टू डू कम्युनिटी सर्विस एंड नॉट सपोज टू कम टू कॉलेज. देन उसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में इट मतलब आवर्स के हिसाब से तो थोड़ा काम कम हो जाता है, बट मतलब काम उतना ही रहता है आपके पास, बट नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके कम होते हैं. सो या अभी मतलब जैसा हमारा फ्राइडे हाफ डे रहता है, सैटरडे हाफ डे रहता है, और वो डिपेंड करता है लेक्चर टू लेक्चर. कभी किसी को लेना होता है तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होते हैं हमारे. एंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसे ही रहता है कि मतलब थर्ड सेमेस्टर इज़ वेरी हेक्टिक, क्योंकि आपको अपना रिसर्च मैनेज करना है, आपको अपना कोर्स के कोर पेपर्स मैनेज करने हैं, एंड आपको अपना प्रो बोनो भी मैनेज करना है. ऑल ऑफ दैट इन वन सेमेस्टर. So that gets a little hectic, and then fourth semester is majorly internship और एक core exam रहता है. So वो भी थोड़ा hectic रहता है, but it is manageable. So yeah, मतलब exhausting हो जाता है, plus you get a lot of assignments to do. इंटरनल असेसमेंट्स के अलावा भी काफ़ी सारे जैसे केस स्टडीज़ मिल जाते हैं, या यू टू डू योर होमवर्क, यू टू रीड अप, यू टू गो थ्रू रिसर्च पेपर्स, काफ़ी काम रहता है.
So yeah, मतलब ये pretty much busy पूरा time. Right, so all of this is really seem to be hectic. So is it really worth it, and what are the career options that students go into? इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी वर्थ इट है. बहुत कितना कुछ सीखने को मिलता है यार. रिसर्च मुझे नहीं पता था कैसे किया जाता है, क्या होता है उसमें. सो रिसर्च इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड या रिसर्च रहता है. रिसर्च के बाद जो हमें क्लास में एक्टिविटीज़ रहते हैं, जैसे केस स्टडी डिस्कशंस होते हैं, या फिर जैसे टॉपिक्स डिवाइड करके उन्हें डिस्कस किया जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट. जितना भी लाइक टीचिंग मेथड सब टीचर्स के अलग अलग होते हैं, तो जो जो काम वो हमें देते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है उससे. क्योंकि थिंग इज कि टीचर्स पढ़ाकर चले जाएंगे और हम घर जाके नहीं पढ़ेंगे, बट जो वो काम देते हैं, जो उसके थ्रू हम पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत हेल्प करता है. एंड द प्रेजेंटेशंस, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन से आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट मिलता है. आई डोंट नीड टू मेंशन इट. तो वो बहुत बढ़िया रहता है. एंड कम्युनिटी सर्विस वो भी काफ़ी सही रहता है. एंड या सो बढ़िया रहता है ऑल इन ऑल. Right, so and career options. करियर ऑप्शंस या सो मेरे पर्टिकुलर कोर्स में क्लिनिकल साइक आपको परस्यू करने के लिए मास्टर्स इज़ नॉट इनफ. आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स यू आर सपोज टू डू योर MPhil फ्रॉम एन RCI सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट. सो या उसका भी एग्ज़ाम रहता है मास्टर्स के बाद. So you're supposed to give that exam, and then you get into MPhil, 2 years of MPhil, you get your license, and then you can practice as a clinical psychologist. Otherwise, usually people also go for research after clinical psych ka degree. They take a PhD, sorry. तो वो PhD करते हैं usually research के अंदर for the doctorate. सो या अभी क्लिनिकल साइक में ये भी है. देन टूल कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, जिसमें यू बेसिकली कंस्ट्रक्ट टूल्स टू इवेलुएट के, मतलब जैसे अलग अलग तरह के टूल्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजी के बच्चे यू आर अवेयर ऑफ BDI, बेक्स्ट डिप्रेसिव इन्वेंट्री. सो ऐसे ऐसे करके हम टूल्स बना सकते हैं अपने. तो टूल कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन पोस्ट दैट. सो ये थोड़े से चीज़ें हैं जो करते हैं. अदरवाइज़ हमारे साइक डिपार्टमेंट में इतने सारे कोर्सेज हैं. काउंसलिंग पे है, न्यूरो साइक है, साइको ऑन्कोलॉजी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं. हेल्थ साइक का है, एजुकेशनल साइक का है, बहुत सारे कोर्सेज हैं. सबके अपने अपने करियर ऑप्शंस हैं. Pretty good it is. Right, depending on the interest areas. Exactly. Like, people can go and pick and choose their own career paths. Yeah. So lastly, what would be your overall advice for the viewers who are very keen to get into Christ and pursue psychology at Christ? See, the course here is really nice. So if you are preparing for it, you might as well, just give your heart and soul to it. तो अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो टू कम इन टू द यूनिवर्सिटी, यू नीड टू फर्स्ट पहले समझना पड़ेगा कि आर यू रेडी टू गिव इन. मतलब ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड दे विल ऑल्सो टेक अ लॉट फ्रॉम यू. मतलब आई हैव हैड मल्टीपल ब्रेकडाउन्स, आई वोंट डिनाई, क्योंकि चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं. UG जो यूजुअली होता है लोगों का, वो काफ़ी चिल रहता है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में. बट वंस यू गेट इनटू मास्टर्स ऐसा लगता है कि वो फ्रीडम छिनती जा रही है और आपको पूरा टाइम काम करना है. तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छा हाँ मुझे ये करना है. सो दैट इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली फॉर द एंट्रेंस थिंग, जो जैसे मैंने बोला, जितना आपको पता है जस्ट बी ट्रू टू योर नॉलेज, जस्ट नो वॉट यू स्पीक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या दिस ये है. एंड देन क्राइस्ट में initially it will feel like a lot, but the kind of person that you become being in Christ, मतलब याद रखोगे, it is really nice. पूरा overall personality development होता है यहाँ पे. So yeah, that will be my advice for all of you all. Yeah, once a Christ sight, always a Christ sight. Always a Christ sight, and right. Christ actually prepares you for life. It teaches you so much and enhance your overall soft skills, personality, and all of that, so that you actually go out into the world and get Absolutely. started. Okay, so thank you so much, Janvi, for coming here and sparing your time and sharing so much valuable information for our viewers, and hope it will be really very helpful for them. I'm glad I could be of help. Yeah. Thank you so much. No problem.